Namaskar, my name is Vinay Kumar, and I again welcome you all in my next lecture of the development of Indian Constitution. Well, students, as you know very well that the topic which is being discussed by us that is the Government of India Act 1935. In our previous sessions, we have already discussed what was it all about. Well, we have discussed in details that what was the Government of India Act 1935. We have discussed the objectives, we have discussed the provisions, we have discussed basically the loopholes, or we discussed that why many people, yeah, why the act has been criticized. I mean to say that we have also discussed criticism of this particular act, and we have also discussed the outcome of the Government of India Act 1935. Well, in today's session, I'll be discussing a very important concept. I have got a very important topic as far as the Act is concerned, as far as the Government of India Act is concerned, 1935. That is why the Act, or why it was considered the lengthiest and most comprehensive Act. In simple term, I would like to explain you, students, that as I had told you that ब्रिटिश शासन रूल्ड अस, उन्होंने करीब 200 वर्षों तक, 200 साल तक हम पर शासन किया. और ब्रिटिश गवर्नमेंट जितने भी एक्ट लेकर आई, we started with 1858, then we discussed about 1891, then we discussed about 1892, 1919, many acts have been discussed by us. Then we also discussed about all the round table conferences, Golmez Sammelan, 1930, 1931, 1932. Okay, we have also discussed Simon Commission. बट क्या था ऐसा कि इस एक्ट को सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट कहा गया, या ब्रिटिश सरकार के इतिहास में ये जो एक्ट था सबसे लेंथीएस्ट एक्ट था. विल सी दैट व्हाई इट इज कंसिडर्ड द लेंथीएस्ट एक्ट, और द आई वुड से दैट कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट. और एक बात ध्यान रख लीजिएगा, इफ एनीवन आस्क यू या यू आर आस्क्ड इन एनी एग्जाम्स कि कौन सा ऐसा एक्ट है, कौन सा ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जिसको बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत विस्तृत, बहुत विस्तार, या कहूंगा मैं लेंथीएस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट बोला गया, तो वो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का. So friends, I request you to please allow me to start today's session. I have got a very important topic. Again, I would request you all to please pay attention to my words, to please pay attention to those contents which are being shared by me on a screen. And in case you think that there is any problem, any difficulty, please feel free to get in touch with me. I'll help you out. As I always, assure you that uh, I'm always with you. The topic, or should I say the concept, must be clear. चीजों को रटने की कोशिश ना करें, उसका कंसेप्ट क्लियर करके चलें. और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग. और बहुत सारे एग्जामिनेशंस में एमसीक्यूज बेस्ड जो भी एग्जाम्स होते हैं, इन पर्टिकुलर जो टॉपिक हम विच आर बीइंग डिस्कस्ड दीस डेज, बहुत क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं. So let's start today's session. First of all, I will let you know, in brief, what is it all about. As you know that the Government of India Act 1935 was indeed one of the most significant pieces of legislation enacted by the British Parliament concerning the governance of India. It was notable for its length and complexity, encompassing a wide range of provisions designed to restructure the administrative and political framework of British India. So later we will discuss some points, some contents, some headings, you know, some important aspects. On the basis of those, I would say, contents or headings, you know, I'll give you an idea that why the Government of India Act is considered the most lengthiest or comprehensive act. ओके. अभी तक जितनी भी बात हमने करी, आपको पता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, स्टूडेंट्स, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे. थोड़ा सा ब्रीफ में फिर से करना चाहूंगा. आपको पता है कि जो ब्रिटिश सरकार है वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक्ट लेकर आ रही थी. दे केप्ट ऑन रिफॉर्मिंग द थिंग्स, दे केप्ट ऑन चेंजिंग देयर स्टडीज, दे केप्ट ऑन ब्रिंगिंग न्यू पॉलिसीज एंड ऑल. वो केवल इसलिए उनके पीछे पर्पस ये था कि जो बेसिकली जो इंडिया है, जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं,
उनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जा सके, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। क्योंकि कहीं न कहीं ये भारतीयों को भी लगने लगा था कि ब्रिटिश सरकार जो है उन पर या उनके फ़ेवर की बात नहीं कर रही है, केवल एक दिखावा, एक ढोंग है कि वो इंडियंस या भारतीय जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है या उनका फ़ेवर चाहती है, बट ऐसा कदापि नहीं था। वो तो केवल भारत में चीज़ों को या रिसोर्सेज़ का यूज़ कर रहे थे, यूटिलाइज़ कर रहे थे, और उनकी कभी भी मंशा ये नहीं रही थी कि भारत आज़ाद हो या स्वाधीनता को प्राप्त करे। और एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से ब्रिटिश को अब ये डर लगने लगा था या भय सताने लगा था कि इंडियंस जो है फिर से यूनाइट हो रहे हैं, और उनको ये लगने लगा है कि ब्रिटिश सरकार बस उनका यूज कर रही है केवल दिखावे के लिए, एक ढोंग, जैसे 1919 के एक्ट में या फिर आगे जो भी एक्ट आए उससे आगे उन्होंने बोला कि हम भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाएंगे। और प्रोविंशियल लेवल पर इन्होंने बहुत सारे काम किए, लोकल स्तर पर बहुत सारे काम किए इन्होंने। और जिस तरह से हमने देखा है जो गोलमेज सम्मेलन थे, जितने भी आई वुड से दैट 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए लंदन में, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उसमें भी इस बात पर बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया गया कि भारतीयों की जो आई वुड से जो इन्वॉल्वमेंट है, इंडियंस का जो इन्वॉल्वमेंट है, उसको सुनिश्चित किया जाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट में उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं वो बस इसलिए था कि ब्रिटिश सरकार को भी लगने लगा था कि वो ज्यादा दिन शासन अब नहीं कर पाएंगे इंडिया में, और उनको लौटना पड़ेगा, और फिर से वही चीज कि कहीं ऐसी स्थिति दोबारा पैदा ना हो जाए। 1857 के रिवोल्ट के कॉन्सिक्वेंसेज जो ब्रिटिश सरकार ऑलरेडी झेल चुकी थी, फेस कर चुकी थी, और यू नो एक बार फिर से वही चीज कहूंगा कि 1857 के रिवोल्ट के जो कॉन्सिक्वेंसेस रहे, उसने कहीं कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार की जड़ें तक हिला दी थी। तो इसी तरीके से 1919 के एक्ट के साथ हुआ है, फिर साइमन कमीशन वो लेके आए, फिर गोलमेज सम्मेलन हुआ, और फिर दे केम विद दिस थिंग, a very comprehensive act, the government of India Act 1935, जिसमें अगेन उन्होंने ये जताने का या ये भारतीयों को एहसास दिलाने का प्रयास किया कि वो भारतीयों के साथ है, और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं। उनकी बात जो गवर्नमेंट में, ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो रखी जाती है, उसको पूरा तवज्जो देते हैं। हालांकि फिर वही चीज है कि जो प्रॉपर या एक एक्चुअल जो सत्ता की बागडोर थी वो ब्रिटिश सरकार के हाथ में थी, और डिसीजन मेकिंग पावर अभी भी इन्हीं के हाथ में थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात हमारे लिए रही कि प्रेजेंट सिनेरियो में हम जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जो भारतीय संविधान की बात करते हैं, तो उसका प्रारूप, उसका ढांचा इस एक्ट के तहत तैयार हो चुका था। इसने कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था आने वाले भारतीय संविधान के कंस्ट्रक्शंस में। तो बहुत सारी अच्छी चीजें भी रही, लेकिन वो बस वही वाली बात है, ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। कुछ ज्यादा भारतीयों को इस एक्ट ने भी नहीं दिया जिस तरीके से गोलमेज सम्मेलन और साइमन कमीशन नहीं दे पाए थे। लेकिन हाँ, अपने आप में एक्ट बहुत कॉम्प्रिहेंसिव था, बहुत सारे प्रोविजंस लेकर आए वो, इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, क्योंकि उनको अब ये भारतीयों को जताना था कि वो भारतीयों को एक साथ लेके चल रहे हैं, भारतीय जनता को एक साथ लेके चल रहे हैं, और ब्रिटिश सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। एक बहुत बड़ी बात फिर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि जिस तरीके से 1919 में या 1919 का जो एक्ट था, उसमें ये इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था, या इसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव भी था कि भारतीयों की जो भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए, भारतीयों के जो रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जाए, उनकी लोकल लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर उनके उनको कुछ अधिकार दिए जाए, कुछ प्रोविंशियल स्वायत्तता या ऑटोनॉमी प्रदान किया जाए। इसी तरीके से फिर दे केम विद साइमन कमीशन, एक कमीशन आई वुड से दैट तैयार किया गया था। साइमन कमीशन रिपोर्ट तैयार करी गई थी, जिसको फिर से ये जिम्मेदारी सौंपी गई, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई कि एक भारतीयों की जो आर्थिक राजनीतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए वो एक संविधान का प्रारूप तैयार करे इन भारतीयों के लिए। लेकिन अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंसेस आप जानते हैं कि क्या हुआ। देयर वर 7 मेंबर्स इन दैट कमीशन, और उन 7 मेंबर्स में से एक भी भारतीय रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। आप इस चीज को सहज समझ सकते हैं कि जिस कमीशन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करे, भारत की आबो हवा की को ध्यान में रखते हुए या उनकी राजनीतिक आर्थिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए संविधान का प्रारूप का निर्माण करे, बट एक ऐसा कमीशन जिसमें कोई भारतीय नहीं था। अब सीधी सी बात है कि भारतीय जनता ही भारत को या भारत की आबो हवा को या भारत की राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को बेहतर जान सकती है। तो वो उसमें से उनमें कोई उन्होंने कोई भी एक भी रिप्रेजेंटेटिव, देयर वर 7 मेंबर्स, एंड आउट ऑफ 7 मेंबर्स इवन देयर वाज नॉट ए सिंगल, आई वुड से दैट, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। तो उसको उसका विरोध किया गया, दैट साइमन कमीशन अपोज्ड बाय द इंडियंस, और कारण वही था कि उसमें एक भी भारतीय का ना होना।
और इसको श्वेत कमीशन की भी संज्ञा दी गई, व्हाइट कमीशन की संज्ञा दी गई और काले झंडे दिखाए गए और सबसे बड़ी बात साइमन बैक, साइमन गो बैक के नारे भी लगे क्योंकि अ, हालांकि एक बहुत ही इंसिडेंट इस कमीशन से जुड़ा हुआ है जो लाला लाजपत राय थे लाहौर में, विच यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ द इंडिया। लाहौर में बेसिकली वो प्रोटेस्ट कर रहे थे साइमन कमीशन के विरुद्ध में, तो ब्रिटिश की उनको लाठियों का प्रहार झेलना पड़ा और उनकी मृत्यु तक हो गई थी। तो इस तरीके से जब कॉन्सिक्वेंसेस उनके फेवर में नहीं थे, कुछ फ्रूटफुल निष्कर्ष नहीं निकल पाए, तो फिर उन्होंने लंदन में लगातार थ्री कंसेक्यूटिव, आई वुड से थ्री राउंड टेबल्स कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज कराए। 1930 यानी कि 1930, 1931, 1932 डेट्स एंड ऑल आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू इन डिटेल्स। पूरा मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर ब्रीफ कर रहा हूँ किस तरह से जो आई वुड से जो टॉपिक है वो कनेक्ट हो जाए, वो आप कनेक्ट कर ले इजीली जो प्रीवियस टॉपिक हुए। और सबसे बड़ी बात, बस जैसा कि मैं कई बार कहता भी हूँ कि whenever I come with a new topic, I always try to bridge the gap between your previous knowledge and the current knowledge. This is the correct method of teaching, or एक basically this funda is based on psychological principles, where a teacher should always try to connect yeah, make a relation between a student's previous knowledge and his करंट नॉलेज। उसमें पूर्व ज्ञान से वर्तमान ज्ञान को जोड़ना चाहिए, उससे कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाते हैं। हालांकि ये जो मैं बोलूंगा, जो भी हम एक्ट पढ़ रहे हैं, मैंने बहुत शुरू में आपको एक बात बता दी थी कि जब मैंने आई हैड टॉट यू 1850 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, मैं जब आपको पढ़ा रहा था मैं बताता चला गया था कि आप किसी भी एक्ट को भूलिएगा मत। ये एक्ट दूसरे एक्ट से लिंक्ड है और आपको परेशान करेंगे, तो उन चीजों को बेसिकली जो मेजर कंसेप्ट है उनको ध्यान में रख लीजिएगा, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो सके। इसी तरीके से अभी जैसे आज का टॉपिक मैंने लिया है कि वाई I would say that the Government of India Act 1935 is considered the lengthiest and most comprehensive act। तो उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ कि चीजें क्या थी और कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और वही जरूरी है, चीजों को रटने की कोशिश ना करें। बेसिकली एग्जाम्स में जब भी आप अपेयर होते हैं, तो जिन क्वेश्चंस को आप फेस करते हैं वो तभी कर पाते हैं जब आपने ध्यान से चीजों को पढ़ा हो, कंसेप्ट आपके लिए क्लियर हो। तो आई होप मैंने इतनी अच्छी तरीके से आपको रटवा दिया है, जो मेन टॉपिक है, जो पॉइंट से क्वेश्चन उसी से बनेंगे, चाहे वो यूजीसी नेट एग्जाम्स हो या कोई भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो। तो इस तरीके से साइमन कमीशन का भी विरोध हुआ था, आपको पता है, साइमन गो बैक के नारे लगे थे, और फिर लंदन में थ्री गोलमेज या थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज कराया गया, और उसके पीछे भी सेम पर्पस था कि भारतीयों के लिए एक संवैधानिक पृष्ठभूमि को तैयार किया जाए, और सबसे बड़ी बात, इनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जाए, भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया जाए। लेकिन हुआ क्या, अल्टीमेटली कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आए। थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस तो जो हुए, ऑर्गेनाइज कराए गए, उसके बाद भी जो यू नो वो विफल ही रहे, क्योंकि सबसे बड़ा कारण तो वही था कि उस समय की पार्टी, भारतीय कांग्रेस पार्टी या इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो पूरी भारतीय जनता को रिप्रेजेंट कर रही थी, वो केवल दूसरे ही या सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में ही भाग ले सकी। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन था, यानी कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था और जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, उसमें तो कांग्रेस उपस्थित थी ही नहीं। कारण आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कि बेसिकली महात्मा गांधी जी के द्वारा जो 1930 1930 में 1930 में जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाया गया था, उसके तहत में बहुत सारे कांग्रेसियों को ब्रिटिश सरकार ने जेल में डलवा दिया था, तो वो वैसे भी वहां पर they it wouldn't have been possible for them to participate in first and third, I would say that round table conferences। हालांकि जो तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, उसमें कांग्रेस को इनवाइट भी नहीं किया गया था, ओनली 46 पार्टीज वर देयर। और इस तरीके से आपने देखा कि जब गोलमेज सम्मेलन अंत में विफल हुआ, उसके भी कुछ फ्रूटफुल कॉन्सिक्वेंसेज नहीं हुए। अंग्रेजों के मुताबिक जो चाहते थे, जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट करे थे, दो ऑब्जेक्टिव्स यू नो दे कुडंट अचीव, तो फिर वो दे केम विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, the Government of India Act 1935, which was a very comprehensive and lengthiest act। और अब तक के इतिहास में फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत अ, जो ब्रिटिश सरकार है, सॉरी, जो ब्रिटिश सरकार ने जितने भी एक्ट पारित किए, उस उन एक्ट्स में सबसे ज्यादा विस्तृत जो एक्ट था वो 1935 का भारतीय अधिनियम एक्ट था, याद रख लीजिएगा, 1935 का। अब आई होप कि आप भूलेंगे नहीं, मैंने इसी तरीके से आपको
काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया. नाउ we will go through the all the contents or headings which are mentioned here, and I'll try to make the concept clear for you that why the act, yeah, Government of India Act 1935 is considered lengthiest, the most lengthiest and comprehensive act. The first one is length and complexity. तो देखिएगा वो वाली मैंने स्ट्रक्चर इसकी सब हेडिंग है कि द एक्ट वाज ओवर 450 causes, sorry, clauses and 15 schedules long, making it one of the longest acts ever passed by the British Parliament. It covered a vast array of subjects, reflecting the complexity and diversity of the Indian subcontinent. तो सीधी सी बात है कि ये इतना विस्तृत, इतना कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट था, इतना लेंथीएस्ट एक्ट था. इसमें 450 यानी कि 4.5 तो क्लॉज थे उस समय की बात मैं कर रहा हूँ, एंड 15 शेड्यूल्स यानी कि 15 शेड्यूल्स थे. लॉन्ग मेकिंग इट वन ऑफ द लॉन्ग एक्ट. सीधी सी बात है, ये मैं बता दिया, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एक्ट. जितने भी वो ब्रिटिश सरकार अभी तक एक्ट लेकर आई थी, ये एक्ट पारित किया था, चाहे हमने डिस्कस किया हो 1858 1858 का, या 1861 का, या 1892 का, या आई वुड से दैट 1902 का, या 1919 का, 1919 का, या फिर साइमन कमीशन, या फिर मैं बोलूं कि आपके जो गोलमेज राउंड सम्मेलन, उसमें जो भी वो प्रोविजन लेकर आए, तो सबसे लेंथिएस्ट क्लॉजेस या एक्ट था ये, प्रावधान था. इस चीज को आप भूलिएगा मत. नाउ if I go to the next heading, which is yeah, which talks about the detailed provisions. So it included detailed regulations for the administration of provinces and princely states. Okay, the establishment of a federal structure and the division of power between the central and provincial governments. तो बेसिकली बहुत सारे डिटेल प्रोविजंस थे, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे लेंथीएस्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट था. तो इसमें सीधी सी बात है, व्हेन इट हैज गॉट फीचर ऑफ लेंथीएस्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट, तो सीधी सी बात है, इसमें जो प्रोविजंस होंगे, जो इसमें जिन चीजों को डिस्क्राइब किया होगा, जो भी कुछ उनकी स्टडीज रही होगी, वो बहुत डिटेल्ड होगी. तो बेसिकली जब एक्ट इतना बड़ा था, जब एक्ट इतना लेंथीएस्ट था, इतना कॉम्प्रिहेंसिव था, तो ऑब्वियसली इसमें जो प्रोविजंस थे वो बहुत डिटेल्ड प्रोविजंस थे. इट इंक्लूडेड इट इंक्लूडेड डिटेल्ड रेगुलेशंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स, the establishment of a federal structure and the division of powers between the central and provincial governments. वही बात है, जितने भी प्रोविजंस थे बेसिकली, जैसे कि फेडरल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल या प्रांतीय स्तर पर बहुत सारे प्रोविजंस वो लेकर आए कि क्या होना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से चलाना है, किसको क्या पावर देनी है, किसका क्या क्षेत्राधिकार है, और किसको कैसे वर्क करना है, किन के अधिकार, मतलब प्रोविंशियल लेवल पर क्या राइट्स हैं और सेंट्रल लेवल पर क्या राइट्स हैं, अपने अपने विषय सब्जेक्ट्स क्या हैं, इन चीजों के बारे में विस्तार से इन चीज प्रोविजंस थे 1935 का जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था. Now we will also look at some key features. We'll look at some key features which will make the concept clear, and also these key features will provide an idea that why the Government of India Act is considered one of the lengthiest and comprehensive act. So first, I would go through this first one. As far as the key features are concerned, the federal structure. Federal structure आप जानते हैं. Even if I talk about the present scenario, तो अभी जो हम भारत के एडमिनिस्ट्रेशन की बात जो करते हैं, या भारत के अंतर्गत जो विभिन्न लेवल पर जो गवर्नमेंट्स हैं, हमारी जो गवर्निंग बॉडीज हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो या स्टेट लेवल पर हो, या फिर मैं बात करूँ लोकल लेवल पर हो, तो एक फेडरल सिस्टम है. जो शक्ति है, जो पावर है, जो क्षेत्राधिकार है, उसको डिवाइड किया गया है, और बेसिकली अपने अपने अधिकारों, अपने अपने क्षेत्राधिकारियों के अंतर्गत सरकारें काम करती हैं. कोई किसी के मैटर में दखलंदाजी, इंटरफियर नहीं करता है. वो पता लगे कुछ मैटर पर, कुछ विषयों पर, कुछ सब्जेक्ट्स पर फेडरल या संघीय गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दी गई है केंद्रीय सरकार को, कि जैसे कि रेजिड्यू या रेजिड्यूरी पावर है, जो मैं बता चुका हूँ, जिसको अविशिष्ट शक्तियां बोलते हैं. उसके संबंध में भी केंद्र कानून बना सकता है, या कुछ ऐसे मुद्दे जिनके बारे में विशेष अधिकार है, जिनके संबंध में विशेष अधिकार है केवल संघ को, केंद्र को, कि वो कानून पारित कर सके. सो फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें, फॉर द फर्स्ट टाइम द एक्ट प्रपोज्ड अ फेडरेशन ऑफ इंडिया which would include both British Indian provinces and princely states. However, the federal part of the act was never implemented because the princely states did not join the federation. ठीक है. बेसिकली फेडरल सिस्टम की बात हो रही है, पहली बार ऐसा हुआ, इस एक्ट में प्रोविजन आया
कि basically, as I said, the act proposed, I want to say the Government of India Act proposed the Federation of India, which would include both British Indian provinces and प्रिंसिली स्टेट्स। यानी कि जो बेसिकली हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो प्रांतीय लेवल पर या प्रोविंशियल लेवल पर या फिर केंद्रीय लेवल पर जो पावर की बात करी इन्होंने, वो पहली बार ऐसा हुआ कि फेडरल स्ट्रक्चर की बात करी इसके तहत कि अपने अपने क्षेत्राधिकार होंगे, अपने 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 कार्य करने का ढंग होगा, अपने विषयों पर कानून बनाने की स्वतंत्रता या फ्रीडम होगा। So it happened first time कि the act proposed a federation of India which would include both British Indian provinces and princely states। तो बेसिकली भारत के अंदर कुछ ऐसे प्रोविंसेस थे जिन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू शासन हो रहा था, और कुछ डायरेक्टली ऐसे बेसिकली प्रांतों में विभाजित थे। तो इन दोनों में यानी कि केंद्रीय या संघीय और प्रांतीय स्तर पर फेडरल सिस्टम की बात करें, संघीय व्यवस्था की बात करें, इसमें ऐसा पहली बार हुआ कि इसने फेडरल सिस्टम को प्रपोज किया। Now provincial autonomy. The act introduced provincial autonomy, allowing provinces to govern themselves with elected legislative assemblies. It provided for the separation of power between the executive and the legislature at the provincial level। बेसिकली यहाँ पर मैं फिर बता रहा हूँ, जो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसके तहत ये बहुत ज्यादा विशेष तौर पे इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट किया गया, इम्फेसाइज किया गया कि प्रोविंशियल को स्वायत्तता प्रदान की जाए, उन्हें ऑटोनॉमी प्रदान की जाए। अब सीधी सी बात है, स्वायत्तता या ऑटोनॉमस से आप क्या समझते हो? फॉर एग्जांपल, जैसे प्रेजेंट सिनारियो में हम बात करते हैं ना, कि जैसे यूजीसी या कुछ बॉडीज ऐसी हैं जिनके ऊपर किसी का आई वुड से अंकुश नहीं है, या वो फ्री हो गए। जैसे कुछ बॉडी ऐसी है, वो खुद अपने डिसीजन लेने में स्वतंत्र है, किसी और के डिसीजन से वो इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। तो उसको हम स्वायत्तता बोलते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि वो एक स्वायत्त बॉडी है, यानी कि कुछ ऐसे अधिकार जिसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के अंतर्गत पहली बात कि यहाँ पर इस एक्ट के तहत पहली बार ऐसा हुआ था, कि जिसके अंतर्गत जो प्रांतीय स्तर पर उनको ऑटोनॉमी प्रदान की गई, यानी कि प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान करी गई इस बात की कि वो अपने अपने जो विशेषाधिकार हैं, जो स्पेशल राइट्स हैं, जो वो कानून बनाना चाहते हैं, जो भी कुछ उनके पॉलिसीज हैं, स्ट्रेटेजीज हैं, वो उस पर काम कर सकें और दूसरा कोई उस पर इंटरफेयर ना करे। यानी कि उसमें जो केंद्र का जो है बेसिकली सेंटर का उसमें इंटरफेरेंस ना हो। The act introduced provincial autonomy, allowing provinces to govern themselves with elected legislative assemblies। तो बेसिकली वो खुद से अपने अपने कामों में ऑटोनॉमी गेन कर सकें, और बेसिकली allowing provinces to govern themselves with elected legislative, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, जो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उसके आधार पर वो स्वायत्तता को प्रदान कर सके या ऑटोनॉमी को प्राप्त कर सके। नाउ डायरकी एट द सेंटर, जिसको आई वुड से दैट द्विसदनीय व्यवस्था भी हम कहते हैं, डायरकी एट द सेंटर। तो द एक्ट प्रपोज्ड अ डायरकियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर, similar to the one already in place in provinces under the Government of India Act 1919, sorry। It divided subjects into reserved and transferred categories, with the reserved subjects remaining under the direct control of the Governor General। सो द एक्ट डायरकी सिस्टम से आप सभी भली भांति परिचित है। डायरकी है, इसको द्विसदनीय अवस्था भी बोलते हैं, द्विसदन। इसमें इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि बेसिकली किसी एक ही क्षेत्र में या एक ही प्रांत में या किसी एक ही भूभाग पर जब दो लोग एक साथ शासन करते हैं, तो उसको डायरकी या द्विसदनीय या द्विशासन व्यवस्था बोलते हैं। अब हुआ क्या कि द एक्ट प्रपोज्ड डायरकियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर, सिमिलर टू द one already in place and in provinces under the government of India Act 1990। जिस तरह से 1919 में प्रोविजन था, उसी चीज को इन्होंने थोड़ा सा और एम्फोसाइज किया, और बेसिकली कुछ सब्जेक्ट डिवाइड किए गए थे, सेंट्रल लेवल पर और प्रोविंशियल लेवल पर, और इनके विषय अपने अपने थे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ ट्रांसपोर्ट विषय थे, कुछ रिजर्व थे, तो उनको वो कैटेगराइज किया गया, उन विषयों को, उन सब्जेक्ट्स को। और ये स्वतंत्रता की उन लोगों को फ्रीडम थी कि वो अपने अपने लेवल पर ही उन विषयों से संबंधित डिसीजन ले सकें या कानून बना सकें, और आपस में एक दूसरे का इंटरफेरेंस ना हो। तो इट डिवाइडेड सब्जेक्ट्स इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड कैटेगरी, जैसे कि मैंने बताया था, आरक्षित और ट्रांसफरेबल या हस्तांतरण कैटेगरीज। और उसको कौन सी रिजर्व्ड और ट्रांसफर कैटेगरीज थी, कौन कौन से विषय थे, कितने थे?
वो मैं प्रीवियस सेशन में आपको बता चुका हूँ, उसमें आप एक बार उसको फिर से देख लीजिएगा। विद द रिजर्व सब्जेक्ट्स रिमेनिंग अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल। ठीक है। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी थे बेसिकली जो अम, ऐसा समझा गया कि जिनका ना तो वो ट्रांसफर्ड कैटेगरीज में थे या रिजर्व कैटेगरी में थे, तो बेसिकली उनके ऊपर जो कंट्रोल था वो डायरेक्टर जनरल या डायरेक्ट कंट्रोल था वो गवर्नर जनरल का था उन विषयों के संदर्भ में। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब अच्छे से समझते हैं। बेसिकली इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं, अगर वर्तमान में आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं या यूपी स्टेट की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी बाई कैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम है। अभी लेजिस्लेचर को आप देखेंगे कि जो विधानमंडल है उसके अंदर विधान परिषद और विधानसभा है काम करती है। तो ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर की जो मैं बात करूँ, इसका प्रोविजन भी इस एक्ट के तहत था। इट एस्टेब्लिश्ड अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल लेवल। और सेंट्रल लेवल पे भी आप जानते हैं, अगर सेंट्रल या केंद्रीय स्तर पर बात करें तो सदन जो पार्लियामेंट के अंतर्गत मैं बात करूं तो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर एक उच्च सदन है, एक निम्न सदन है। वहां पर भी हम बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बात करते हैं, वहां पर भी हमारा द्विसदनीय व्यवस्था है। तो वो चीज भी यहाँ पर मतलब उन प्रोविजंस का इस एक्ट के तहत में भी इस चीज का वर्णन किया गया था कि व्यवस्था जो होगी द्विसदनीय होगी या बाइकैमरल लेजिस्लेचर की उन्होंने बात करी थी। जिस तरह से मैंने आपको बता दिया कि स्टेट में जैसे कुछ स्टेट है उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा, विधान परिषद, या हम केंद्र स्तर पर देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा। इस चीज का प्रोविजन भी 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके तहत में था, उसके अंतर्गत था। नाउ एक्सटेंडेड franchises, the act significantly expanded the electorate, bringing more Indians into the political process. It introduced a limited form of universal adult franchises for the first time. तो बेसिकली एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजेस से यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इफ आई एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड, बेसिकली 1935 का जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जो बेसिकली कुछ समुदाय या कुछ इस तरीके से जैसे कि मैं आपको बताया था कि मुस्लिम ने अपने लिए अलग से इलेक्टोरेट की मांग करी थी। उसी तरह से जो भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने भी दलितों के लिए अलग से इलेक्टोरेट की मांग करी, प्रोविजंस रखे, अपनी बातें रखी और उसके पीछे रीजंस भी बताया। सो द एक्ट सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड द इलेक्टोरेट, ब्रिंगिंग मोर इंडियंस टू द पॉलिटिकल प्रोसेस। इससे हुआ क्या कि बेसिकली अलग अलग समुदाय या अलग अलग इस तरीके से जो बेसिकली वर्ग रहे, उनको जो अलग इलेक्टोरेट की मांग की गई, उसने बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी इंडियंस को कि दे कुड कास्ट देयर वोट, और उसमें जो बेसिकली पॉलिटिकल प्रोसेस में अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व कर सके, ब्रिंगिंग मोर इंडियंस इनटू द पॉलिटिकल प्रोसेस। और ये तभी हुआ जब हर किसी वर्ग को, स्पेशल समुदाय को किसी स्पेशल उन्हें इलेक्टोरेट की मैं बात करूं, हिंदी में से निर्वाचन मंडल बोलेंगे, उसको एक्सपेंड किया गया अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग उसके हिसाब से। जैसे भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो उन्होंने दलितों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की बात रखी थी, या 1906 में बेसिकली आगा खां के नेतृत्व में एक कमेटी या आई वुड से दैट समिति होती है, वो तैयार की जाती है, और वो 1906 में आगा खां के नेतृत्व में अ, एक कमेटी फॉर्म होती है जो कि शिमला पहुंचती है लॉर्ड मिंटो के पास। फिर लॉर्ड मिंटो से वो एक अलग से निर्वाचन मंडल या इलेक्टोरेट की बात करती है मुसलमानों के लिए। फिर वो उसको एग्री भी कर देते हैं उस चीज के ऊपर, अपनी कंसेंट देते हैं। हालांकि मैं फिर कहूंगा कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के वो थोड़े से इट लेड टू द कम्युनल काइंड ऑफ, आई वुड से दैट, आई वुड से टसल्स या कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि ब्रिटिश सरकार तो हमेशा से चाहते थे कि जो हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई को बढ़ाया जाए, दूरियां बढ़ाया जाए, और आपस में बात करें, इसका मतलब ब्रिटिश सरकार बनाए। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को ऐसे इलेक्टोरेट का दर्जा दिया जाना या इस चीज को एक्सेप्ट करना या प्रोविजन होना, तो इन दोनों में मतभेद की दूरी को बढ़ाता है, जिसका फायदा अंग्रेजों ने ब्रिटिश सरकार ने उठाया। Then executive authority. The governor general retained, ध्यान दीजिएगा बहुत important point है, executive authority, the governor general retained significant powers including control over defense, external affairs, and the certain critical economic matters. Governors of provinces also retained substantial powers including the ability to dismiss ministries. एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की बात हो रही है, बेसिकली गवर्नर जनरल की बात में अभी भी जो गवर्नर जनरल की जो पावर हुआ करती थी वो वैसे ही थी, उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई। गवर्नर जनरल रिटेन्ड
सिग्निफिकेंट पावर्स इंक्लूडिंग कंट्रोल, कुछ ऐसे मुद्दे थे, विषय जैसे कि हम आज भी बात करते हैं कि जो विशेष मुद्दे हैं या स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं उस पे केवल सेंट्रल का ही आधिपत्य है या सेंट्रल के कंट्रोल में आते हैं, जैसे सेना, सुरक्षा आदि। इसी तरीके से जो गवर्नर जनरल रिटेन्ड सिग्निफिकेंट पावर्स दिया, जैसे इंक्लूडिंग कंट्रोल ओवर डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड सर्टेन क्रिटिकल इकोनॉमिक मैटर। Governors of the provinces also retained substantial powers, including the ability to dismiss the minister. अब इनको थोड़ी सी ये पावर भी थी कि गवर्नर जनरल को कि वो मिनिस्टर को भी डिसमिस कर सके। जुडिशियल रिफॉर्म्स, द एक्ट established a federal court. The act established a federal court of India, which laid the foundation for the current Supreme Court of the India. वर्तमान में जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि पहले ही मैंने आपको बताया था कि स्पेशल एक सुप्रीम कोर्ट की डिमांड की गई थी। तो द एक्ट स्टैब्लिश द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया विच लेड द फाउंडेशन। वर्तमान में जो आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, इसकी बता रहा है कि कहना ये चाह रही है वो पर्टिकुलर हेडिंग, इसका कहीं ना कहीं एक फाउंडेशन पहले से ही तैयार कर दी गई थी इस एक्ट के तहत में। और अब हमारे पास भी है विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन टू ओवरसी द रिक्रूटमेंट ऑफ एंड फंक्शनिंग ऑफ द सिविल सर्विसेज। देखिए वही बात है जिस तरीके से मैं बता रहा था, ये जो एक्ट आया था 1935 का, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट के अंदर मैंने जैसे शुरू में बोला बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे थे जिसने कि वर्तमान के लिए आधारशिला तैयार करके रख दी थी। अब प्रेजेंट सिनारियो में अगर हम बात करें, जो हम यूपीएससी की बात हम करते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूं कि इसकी जो आधारशिला है वो 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बना दी गई थी। ओके, तो देख सकते हैं किस तरीके से बहुत ज्यादा लेंथीएस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट था। नाउ इम्पैक्ट एंड लीगेसी, बेसिस फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। The Government of India Act 1935 laid down the foundation for many provisions that were later incorporated into the Constitution of India. It provided a detailed framework that the Indian Constitution Assembly used as a reference while drafting the Constitution. बेसिकली वही बात बोल रहा हूँ, जैसे कि अभी मैं आपसे चर्चा भी कर रहा था, अभी मैं आपको बता रहा था किस तरीके से एक बेस, एक फाउंडेशन तैयार होता है आने वाले फ्यूचर के लिए। तो द बेसिस फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वर्तमान में जो हम भारतीय संविधान की बात करते हैं, भारतीय संविधान का जो प्रारूप देखते हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में उसका फाउंडेशन ले कर दिया गया था, बना दिया गया था। और बहुत सारी चीजें वर्तमान में हम जो भारतीय संविधान के अंतर्गत देखते हैं, उसकी भूमिका पहले से ही, यानी कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके अंतर्गत बना गया था। और क्या भी रहा है कि इट प्रोवाइडेड अ डिटेल्ड फ्रेमवर्क दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यूज्ड एज अ रेफरेंस व्हाइल ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सीधी सी बात है, एक रेफरेंस के रूप में यूज किया व्हाइल ड्राफ्टिंग द फ्रेमवर्क, फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम आज उसका वर्तमान स्वरूप देखते हैं। नाउ ट्रांजिशन टू इंडिपेंडेंस, सीधी सी बात है, द एक्ट वाज द क्रिटिकल स्टेप इन द ग्रेजुअल ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश authorities to Indian leaders. It allowed Indians to participate more actively in governance, preparing the ground for independence 1947. बेसिकली यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जो 1947 में हमने जो आजादी प्राप्त हुई, वी गॉट फ्रीडम, so that is because of I would say that some provisions which were mentioned in the Government of India Act 1935। जैसे ही बोल रहा है कि ट्रांजिशन ऑफ इंडिपेंडेंस, कुछ चीजें ऐसी रही जो इंडिपेंडेंस या भारत को जो आजादी मिली उसमें ट्रांजिट की गई, यानी कि स्थानांतरण की गई। और मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट के अंतर्गत, यानी कि ब्रिटिश इंडिया जब ये, या ब्रिटिश सरकार जब ये एक्ट लेकर आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत लेंथीएस्ट एक्ट था। इसके अंतर्गत इन बातों पर विशेष ध्यान दिया गया कि भारत में एक स्वाधीनता संग्राम की जो यू नो एक आई वुड से चिंगारी उठ रही है, या लोग यूनाइट हो रहे हैं, या वो आजादी के लिए आवाज उठा रहे हैं, और अब चीजें जो है अंग्रेज को सताने लगी है, ब्रिटिश सरकार को सताने लगी है, ये चीजें वर्ष होती जा रही हैं, तो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, इन पे अंकुश लगाना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस भी वो लेकर आए थे, कुछ झूठी लॉलीपॉप, या कहूंगा कि भारतीयों के हाथ में वो झुंझुना समाने की कोशिश कर रहे थे कि इनको बस बहका दिया जाए कि वो भारतीयों को साथ में लेकर चल रही है, लेकिन ऐसा कदापि कहीं भी नहीं था। तो बेसिकली जो भारतीय आई वुड से जो इंडियन जो गवर्नमेंट एक्ट 1935 था, इसके तहत में कुछ ऐसे प्रोविजन थे which led to the independence, I would say, yeah, 1947 independence. We got freedom on that day, in that year.
उस चीज की वो बात कर रहा है कि उसका फाउंडेशन भी, उसमें बहुत सारे काम ऐसे हुए थे या बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो ट्रांसिट हुई 1947 इंडिपेंडेंस की। और द एक्ट वाज अ क्रिटिकल स्टेप इन द ग्रेजुअल ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश ऑथोरिटीज टू इंडियन लीडर्स। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो पावर थी, जो सत्ता थी, वो ये यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि वो जो इंडियन जो लीडर्स थे, आपको पता ही है बेसिकली जो एक्सट्रीमिस्ट थे, basically, जो आवाज उठा रहे थे, जो घोर विरोध कर रहे थे ब्रिटिश सरकार का कि आप यहाँ से जाइए, बिकॉज दे यूज टू फील, कहीं ना कहीं उनके मन में ख्यालात थे या उनको लगता था, वो इस तथ्य से भली भांति परिचित थे, दे वेरी मच दे वर वेरी मच अवेयर ऑफ द फैक्ट कि दे हैव बीन डिस्कार्डेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिन्होंने हेल्प करी एक बेस तैयार करने में 1947 के, आई वुड से, आजादी के लिए, फ्रीडम के लिए। Now, if I'll talk about the conclusion, I would like to conclude the thing over here. Like I have explained you all the things, all the headings and points in detail, or which made you feel that why the Act, yeah, Government of India Act is known as the comprehensive and lengthiest act in, I would say, in history. So, conclusion, if I'll go through the lines, please pay attention. The Government of India Act 1935 was a monumental piece of legislation its length due to its length, detail, and the comprehensive changes it introduced in the administrative and political structure of British India. Its provisions had a lasting impact on the governance of India and served as a precursor to the Indian Constitution, making it a, cornerstone in the history of Indian legislative development. So, the Government of India Act 1935 was a monumental piece of legislation due to its length, detail, and the comprehensive changes it introduced in the administrative and political structure of British India. बेसिकली जिस तरीके से अभी हमने बात करी थी, जिस तरीके से हम एक्ट को देख रहे थे कि कैसे इतना लेंथीएस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट था, क्या इसमें प्रोविजन थे, तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 या 1935 का जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था, उसने एक बहुत it played a vital role as far as the I would say that uh, uh, future I would say that aspects of prospects were concerned, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वर्तमान में जो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जो या यूनियन पब्लिक सर्विस की कमीशन की बात करें हम, या फिर हम फ्रीडम की बात करें, या देश को जो आजादी प्राप्त थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ से वो चिंगारी फूट चुकी थी इस एक्ट के तहत में, या यहाँ पर इतना एक एक कहते हैं ना कि एक बेस वर्क या एक फाउंडेशन तैयार कर लिया गया था कि आने वाले फ्यूचर में ये चीजें हमें हेल्प करेंगी। और अ, सीधी सी बात है कि इट्स प्रोविजंस हैड ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया एंड सर्व्ड एज precursor to the Indian Constitution, making it cornerstone in the history of Indian legislative development. और आगे चीजें देखिए सभी ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हम कभी भी आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, चीजें होते 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 एक तो एक अपने कंप्लीट एक लीजिए एक चरम सीमा में पहुंचती है, और जहां पर उसका प्रारूप कुछ और होता है। ठीक है। अब चाहे हम बात करें 18 जो हमारे पास 58 का एक्ट था, जो 1858 की हमने जो एक्ट में चर्चा करी, तो धीरे धीरे जितने भी एक्ट आए, जितने भी रिफॉर्म्स करते रहे एक्ट्स में या स्ट्रेटेजी बनाते रहे, तो कहीं ना कहीं वो चीजें भारतीयों के लिए मील का पत्थर साबित हुई कि आगे जाके उनको फ्रीडम फ्रीडम पाने में, आजादी की लड़ाई में, या मैं कहूँ कि फिर जो वर्तमान जो हम प्रारूप की बात करें, भारतीय संविधान की बात करें, और किस तरीके से हमने देखा कि उसकी चीजें पहले ही तैयार कर दी गई थी, उसके लिए प्लेटफॉर्म पहले ही तैयार हो चुका था। और हालांकि अभी भी उतनी चीजें इंडियंस की पूरी तरह से फेवर में नहीं थी। मैं कहूंगा कि अल्टीमेट डिसीजन भी अभी ब्रिटिश के हाथ में ही था, और बेसिकली उनकी गवर्नेंस ही थी, वही चीजों को हैंडल कर रहे थे, सत्ता की बागडोर उन्हीं के हाथ में थी। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं चीज़ें अब भारतीयों के इस इतने ये इस इतना रियलाइज़ेशन हो गया भारतीयों को, ये पता चल गया कि ब्रिटिश सरकार जो है उनके फ़ेवर की बात नहीं कर रही है, उनका फ़ेवर नहीं चाहती है, केवल वो शासन करना चाह रहे हैं। तो अब भारतीयों ने अपनी बातें रखना चालू किया था ब्रिटिश सरकार में, उन्होंने अपनी बातों को पहुँचाना चालू किया, उन्होंने विरोध किया। किस तरीके से आपने देखा कि जो कांग्रेस पार्टी है, महात्मा गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन का को डिस्कार्ड किया, उसका विरोध किया। ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध किया गया, नारे लगाए गए, हड़तालें हुई, और फिर जो महात्मा गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट था, उसने कितना अंग्रेजों की जड़ों को हिला के रख दिया। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये चीजें जो हुई वो भारतीयों के फेवर में थी, भले ही थोड़ी मात्रा में थी, लेकिन आजादी दिलाने में इन्होंने बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई।
and we got freedom in 1947. So this way we come to the end of today's session, and I hope that you would have enjoyed the entire session. The session was no doubt very much interesting and valuable, and I would say that important as far as the competitions are concerned. So I hope the concepts are clear for you people, and I would say that even if you think there is something which you are not comfortable with, please let me know. Get in touch with me. I'll help you out. Or I have given you an idea. I think that now at the end of today's lecture, I would say that I have made the concept clear कि why the Act, yeah, Government of India Act 1935 is considered the lengthiest and comprehensive act. और अच्छे से समझ लिया हमने इस चीज को, और फिर रटने की कोशिश ना कीजिए, आप कंसेप्ट को क्लियर करके चलिए. एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू टॉपिक. और आई वुड से दैट थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द वैल्यूबल पार्ट ऑफ टुडेज सेशन. एंड सभी को प्रणाम, शुक्रिया, नमस्कार. सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया.